سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مسئلہ تقلید پر کچھ عرض کرنا ہے۔ مسئلہ تقلید اور دیگر جو مسائل ہیں رفع دین، قرات خلف الامام وغیرہ کے، ان بحثوں میں اور اس بحث میں غیر مقلدین کا خاصا فرق ہوتا ہے، کیونکہ باقی مسائل میں ان بیچاروں کو دلائل ابن حجر سے مل جاتے ہیں، علامہ نووی کی کتابوں سے چھین لیتے ہیں اور زبان وہی گندی ابن حزم کی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ابن حجر نے بھی ان کو یتیم کر رکھا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ خود مقلد ہیں، اس لیے یہاں جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں وہ شیعہ کی کتابوں سے چرا کر لکھا کرتے ہیں، تو یہاں وہ بیچارے بڑے بے بس ہوتے ہیں۔ مسئلہ تقلید میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہمارے ہاں موضوع کیا ہے اور ان کے ہاں کیا ہے۔ میں نے یہ موضوع اب لکھ رکھا ہے تاکہ اگر کہیں کسی کو ذرا خارش ہو مسئلہ تقلید پر بحث کی تو یہ موضوع اسی وقت دستخط کر کے آپ انہیں دے دیں کہ ہمارا یہ موضوع ہے۔ یہ میں سنا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مسئلہ تقلید مجتہد برائے عامی، یعنی تقلید تو نام ہے پیروی کا، اچھے کام میں کسی کی پیروی کریں گے یہ اچھی بات ہے، برے کام میں کریں گے تو یہ بری بات ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ ہو کر نماز پڑھ لی تو یہ اچھی چیز ہے، کسی کے ساتھ جا کے سنیما دیکھ لیا یہ بری چیز ہے۔ یہاں جو بحث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ مجتہد کی تقلید، اور وہ بھی جو اس آدمی نے کرنی ہے، عامی آدمی نے جو قوت اجتہادیہ نہیں رکھتا، اس کی یہاں بحث چلتی ہے۔ غیر مقلدین نہ تو موضوع لکھتے لکھاتے وقت مجتہد کا لفظ آنے دیتے ہیں اور نہ موضوع لکھتے لکھاتے وقت عامی کا لفظ آنے دیتے ہیں، حالانکہ اصل بحث اسی بات میں ہے، کیونکہ جتنی آیتیں یا حدیثیں انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں ان میں یہودی راہبوں کا تو ذکر ہوتا ہے، مجتہد یا فقیہ کا لفظ قطع نہیں ہوتا، حالانکہ انہوں نے پیش ایک آیت یا ایک حدیث صرف ایسی کرنی ہے جس میں یہ ہو کہ فقیہ کی تقلید شرک ہے یا کفر ہے یا حرام ہے یا بدعت ہے، یا مجتہد کی تقلید کفر یا شرک یا حرام اور بدعت ہے، تو اس لیے وہ یہ الفاظ نہیں آنے دیتے۔ میں نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کتاب و سنت پر عمل کو باعث نجات جانتا ہے، جس طرح قانون سے ناواقف ماہر قانون کی رہنمائی میں قانون پر عمل کرتا ہے۔ اب کسی قانون دان سے قانونی مشورہ لے لینا یہ قانون کی مخالفت نہیں ہے۔ ڈاکٹری سے ناواقف ماہر ڈاکٹر کی رہنمائی کا محتاج ہے، اسی طرح عامی کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے مجتہد یعنی ماہر قانون شریعت کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ جس طرح نماز باجماعت میں امام بھی خدا کی ہی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی خدا کی ہی عبادت کرتا ہے، مگر امام کی تابع داری میں۔ بالکل یہی پوزیشن ہے جیسے یہاں ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں، وہاں امام کی جگہ مجتہد ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ان کے مقلدین ہیں۔ اب جب میں یہ مثال دے کر مسئلہ سمجھاتا ہوں تو بیچارے بڑے چیختے ہیں، حالانکہ تقلید کے لیے اقتداء کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، انا علی آثارہم مقتدون۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں تقلید کا ذکر ہے، کفار جو تقلید کیا کرتے تھے، اور حضور نے بھی فرمایا اقتداء باللذین من بعد ابی بکر و عمر۔ تو جو لفظ تقلید کے لیے قرآن اور حدیث میں آ جائے اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کر لینا یہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی مثال۔ تو جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے، امام بھی خدا کی عبادت کر رہا ہے اور مقتدی بھی خدا کی عبادت کر رہا ہے، لیکن امام سے مقتدی آگے نہیں جا سکتا۔ اگر امام ابھی رکوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں چلا جائے تو کیا اس کا یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے؟ ذرا اور وسیع کر کے اس مثال کو سمجھیں۔ ایک آدمی نے گھر میں نماز پڑھی تو اسے ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کا ملا؟ ایک کا۔ وہی نماز اس مسجد میں پڑھی جہاں 5 وقت جماعت ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا، تو اسے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملا۔
वही नमाज उसने जामे मस्जिद में पढ़ी जहां जुमा भी होता है, तो उसे एक नमाज का सवाब 500 के बराबर मिला। जब उसने घर सजदा किया था तो किसको किया था, और जब जामे मस्जिद में सजदा किया फिर किसको किया, वो किसने कहा ताबियादारी में किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इसको 500 के बराबर फरमा रहे हैं। तो जिस तरह जमात में मिलकर खुदा की इबादत करना शिरक नहीं, कुफर नहीं, बिदअत नहीं, हराम नहीं, इसी तरह इमाम की रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर अमल कर लेना ना शिरक है, ना कुफर है, ना बिदअत है, ना हराम है। अब देखिए, इसे तो 500 सजदे का सवाब मिला। अगर ये इस तरह करता कि कुरान में आता है फस्तबिकुल खैरात, करो एक दूसरे से आगे बढ़ो, तो इमाम अभी रुकू में है, ये सजदे में चला जाए, तो फिर इसे कितने सजदों का सवाब मिलेगा जी? हदीस पर, हाँ जज़ाक अल्लाह, हदीस शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में है कि उसका सर मुझे खौफ है गधे की तरह ना हो जाए। और तलखीसुल हबीर में हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अल्फाज और भी नकल फरमाए हैं। हजरत ने फरमाया मुझे खौफ है कि उसका सर कहीं कुत्ते और खिंजीर जैसा ना हो जाए। तो मैं ये आपसे पूछता हूं कि इसने जो मुखालफत की है ये खुदा की है या रसूल की या इमाम की? तो इमाम की मुखालफत से निकलने वाले को कुत्ता और खिंजीर और गधा ये तो हदीस कहती है। तो जानवर गैर मुकल्लिद बना हदीस से या मुकल्लिद बना? ये जो कहा करते हैं कि गैर मुकल्लिद जानवर होता है, हदीस में तो ये आता है जो इमाम की मुखालफत कर रहा है वो जानवर है, और जानवर भी गधा है, खिंजीर है, कुत्ता है, ये जो अल्फाज इनको पसंद हैं। अब देखिए, हम हदीस से इनका जानवर होना साबित कर दें तो फिर भी कहते हैं ये तो अपनी राय पर अमल कर रहे हैं, और ये अपनी राय से मुकल्लिदीन के बारे में क्या कुछ कहते रहते हैं। तो कहते हैं कि देखिए जी, हम तो कुरान हदीस बयान करते हैं। तो जिस तरह इमाम और मुक्तदी दोनों खुदा की ही इबादत कर रहे हैं, लेकिन मुक्तदी इमाम के पीछे पीछे चल रहा है, उसकी रहनुमाई में, उससे आगे नहीं गुजर सकता। इसी बिल्कुल यही माना तकलीद का है। तकलीद में हम ये कहते हैं कि हमारे इमाम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी किताब और सुन्नत पर अमल करते थे, और हम भी उनकी रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर ही अमल कर रहे हैं। अब खुदा जाने ये किस आयत या हदीस में है कि किसी कुरान के माहिर की रहनुमाई में कुरान पर अमल करना शिरक है, या सुन्नत के माहिर की रहनुमाई में सुन्नत पर अमल करना कुफर है। तो ऐसी कोई रिवायत ऐसी मौजूद नहीं। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि इमाम भी खुदा की बात करता है और मुक्तदी भी खुदा की ही बात करता है, मगर इमाम की ताबियादारी में बिल्कुल इसी तरह मुजतहिद भी अपने इज्तिहाद व बसीरत से किताब व सुन्नत पर अमल करता है, और मुकल्लिद भी मुजतहिद की रहनुमाई में किताब व सुन्नत पर अमल करता है। इसीलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तकलीद का मतलब ये बयान फरमाते हैं, इत्तिबा और रिवायत दलालतन, अब्दुल जीद सफा 47। तकलीद की तारीफ में ये तारीफ आवाम के सामने नहायत बेहतर तारीफ है, क्योंकि इसमें रिवायत और दलालत का लफ्ज आ गया है। किताब और सुन्नत पर अमल करना किसी माहिर की रहनुमाई में, ये तारीफ जब आप आवाम के सामने करेंगे ना, तो सब लोग समझेंगे कि किसी उम्मती की बात नहीं मानी जा रही, बल्कि वो उम्मती नबी का ही दरवाजा दिखा रहा है, खुदा की ही ताबियादारी करवा रहा है। यानी माहिर शरीयत की रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर अमल करना। जिस तरह नमाज बाजमात में असल इमाम होता है, अगर इमाम में नमाज की शराइत सही तौर पर पाई जाए तो इमाम की अपनी नमाज भी सही होती है और मुक्तदियों की भी। और अगर इमाम में नमाज की शराइत पूरी ना हो तो ना इमाम की नमाज होगी ना मुक्तदी की। जी जी ठीक है, अभी मैं सिर्फ मौजू मुतय्यन कर रहा हूँ। उसके बाद जब दलाल की बारी आएगी ना, तो इंशाअल्लाह आपको सवाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे आप जो ज़हन में आया है बेशक नोट करते रहें और मुझे देने पड़ती बात नहीं। तो इसी तरह आमी शख्स अगर ऐसे आदमी की तकलीद करे जिसमें इज्तिहाद की शराइत पाई जाती हों, तो
आमाल इंदल्लाह मकबूल होंगे। अगर मुक्तदा में इत्तेहाद की शरायत ना पाई जाए तो दोनों के आमाल ज़ाय होंगे और वो ज़ल्लु फ़अज़ल्लु के मिस्दाक होंगे। फर्क समझ में आ गया ना। हम तकलीद करते हैं सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। उम्मत का इजमा है कि वो मुजतहिद हैं और इजमा दलील शरई है, उनका मुजतहिद होना दलील शरई से साबित है। इसके बरक्स गैर मुकल्लिद अपने जिस मौलवी की बात मान रहे हैं, वो रोकड़ी हो या सनाउल्लाह हो, उसका मुजतहिद होना किसी दलील शरई से साबित नहीं। उसके 5 मुकद्दियों में से 3 उसको अच्छा समझते हैं और 2 उसको बुरा भला कहते रहते हैं रात दिन। तो जिसके आलिम होने पर उसके 5 मुकद्दी भी इकट्ठा ना हो सके, और फिर माहिर तो कोई भी इनमें नहीं होता जिसकी शहादत को हम कबूल कर लें। तो इसलिए इनकी तकलीद तो ये भी कर रहे हैं। इनकी तकलीद ऐसी है जैसे बेवुजू इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़े, जिसमें शर्तें नमाज की ना पाई जाएं। गंदे कपड़ों वाले के पीछे कोई पढ़ ले तो उसकी ना अपनी इमाम की होती ना उनकी होती है। इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में बुखारी शरीफ में यही पेशगोई फरमाई है कि वो जाहलों को अपना रऊस बना लेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए पहले मुजतहिद का ऐलान देखना चाहिए। अब देखिए जो मसला तकलीद है उसमें एक है वो जिसकी हम तकलीद कर रहे हैं और एक हम तकलीद करने वाले हैं। अब बात दावा वही सही होगा जो या हमारा इमाम बयान करे या हम करें कि हम क्या कर रहे हैं, या तीसरा आदमी जो इल्जाम हम पर लगाए वो हमारा दावा बन जाएगा। तो हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये मुतवातिरन साबित है। वो फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले मसला किताबुल्लाह शरीफ से लेता हूं। अब किताब, इसका मतलब ये हुआ कि हनफी पहले नंबर पर कुरान पाक पर अमल कर रहा है इमाम साहब की रहनुमाई में। तो क्या कुरान पर अमल करना कुफर है, शिरक या बिदअत या हराम है? इमाम साहब फरमाते हैं कि दूसरे नंबर पर मैं मसला सुन्नत से लेता हूं। तो क्या इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में सुन्नत पर अमल कर लेना ये कोई कुफर शिरक है? फरमाते हैं अगर मसला सुन्नत में सराहतन न मिले तो फिर मैं सहाबा के इजमा को देखता हूं। अगर सहाबा का इजमाई मसला मिल जाए तो मैं उसे कबूल कर लेता हूं। अगर सहाबा में इख्तलाफ हो तो मैं उस कौल को इख्तियार करता हूं जिस तरफ खुलाफाए राशिदीन हो। ये उनका इरशाद अल्लामा ज़हबी ने अपने छोटे रिसाले मनाक़िब अबी हनीफा व साहिबा में दर्ज फरमाए। और अगर कहीं भी ना मिले तो फिर मैं इज्तिहाद करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तकलीद जो है इसमें से किस चीज को वो हराम कहेंगे, कुरान पर अमल करने को हराम कहें या सुन्नत पर अमल करने को हराम कहें या इजमा पर अमल करने को हराम कहें या इज्तिहाद पर अमल करने को हराम कहें, और इनमें से कोई चीज भी हराम नहीं है। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यमन तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ने आपके साथ जो गुफ्तगू फरमाई और इस्लामी मंशूर तय फरमाया उसमें यही था। पूछा कि किस तरह फैसला करोगे? उन्होंने कहा बे किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से। हजरत ने पूछा फ़इल्लम तजिद फीह, अगर किताबुल्लाह में मसला ना मिले फिर क्या करोगे? ने कहा बे सुन्नत रसूलिल्लाह। ने पूछा कि अगर सुन्नत रसूल से भी मसला ना मिले फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा अजतहिदु बिराई, कि मैं हजरत अपनी राय से इज्तिहाद करके मसला बयान करूंगा। अब बात वाज़ेह है, जैसे हमारे लामज़हब वाइज कहा करते हैं कि हाथें दो हैं, हाथ दो हैं, एक में कुरान है एक में हदीस है, और फिक़ह की किताब के लिए हमारा तीसरा हाथ नहीं है। आंखें दो हैं, एक के साथ हम कुरान पढ़ते हैं दूसरी के साथ हदीस पढ़ते हैं, और तीसरी फिक़ह पढ़ने के लिए हमारे पास कोई आंख नहीं है। इस किस्म के वसवसों को वो कुरान हदीस समझते हैं। मैंने एक से पूछा कि ये जो आता है कि दिल आपके कितने हैं? कहने लगा एक। मैं वहां कुरान रखते हैं या हदीस रखते हैं? एक ने चीज तो निकालनी पड़ेगी आपको, या कुरान रखें या हदीस रखें। फिर हुजूर की हदीस है अल इल्म सलासतुन, वहां तो 3 का जिक्र आ रहा है। आप इस नस के खिलाफ ये मिसालें दे रहे हैं
और वही शैतानी कियास जो है आप कर रहे हैं, आप आखिर इधर क्यों जा रहे हैं? अब देखिए, अगर इन लोगों की बात सही होती तो हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये अर्ज फरमाने पर के मैं इज्तिहाद करूंगा, फरमाते कि मुआज, मैंने तो महज इम्तिहान के लिए ये तीसरा सवाल कर दिया था, तौबा करो, दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ो, निकाह भी जाकर दोबारा करना, तुम तीसरी बात को मानकर मुशरिक और काफिर हो गए हो माज़अल्लाह। लेकिन हदीस आपके सामने है, हजरत बजाय नाराज होने के क्या फरमा रहे हैं, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे कासिद को ऐसी बात कहने की तौफीक अता फरमाई जिससे मेरा दिल राजी है। सोचने की बात है कि इज्तिहाद करना है हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मती हैं या नबी हैं? उम्मती हैं ना। और अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला का। आखिर इसमें क्या रबत है? अल्लाह के पैगंबर इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी उम्मत में मुजतहिदीन पैदा किए जो मेरी उम्मत के मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले या अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तो जिस तरह अल्लाह के पैगंबर ने इज्तिहाद पर खुदा का शुक्र अदा किया, मुजतहिद से राजी हुए, इसी तरह हम मुकल्लिदीन भी खुदा के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मुजतहिद की रहनुमाई की हिदायत फरमा दी, और मुजतहिद से भी राजी हैं। गैर मुकल्लिद खुदा से भी नाराज है, नबी से भी नाराज है और मुजतहिद से भी नाराज है। लेकिन क्या खुदा और रसूल या मुजतहिद से नाराज होने से इनका कुछ बिगड़ जाएगा? अपना अपना ईमान तबाह करेगा ना। इससे दो बातें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक ये कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में ही यमन में हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला की तकलीद शख्सी शुरू हो गई थी, क्योंकि वहां हजरत मुआज अकेले पहुंचे हैं ना। मैंने 12 मनाजरों में गैर मुकल्लिदीन लामज़हबों को यह चैलेंज दिया कि पूरी इस्लामी तारीख से सिर्फ एक शख्स का नाम निकाल दें जिसने यमन में खड़े होकर ये बात कही हो कि हजरत, जब आप कुरान सुनाएंगे मैं सुन लूंगा, जब आप हदीस पेश करेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन यूं ही आप अपना इज्तिहाद और राय बयान करेंगे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो एक भी गैर मुकल्लिद उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं था। बल्कि इससे बढ़कर मैं ये कहता हूं कि तकलीद शख्सी का कोई मुनकर नहीं था। एक नाम भी ऐसा साबित नहीं कर सके कि उसने हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा हो कि हजरत, जब आप कुरान पेश करेंगे मैं तस्लीम कर लूंगा, जब आप सुन्नत पेश करेंगे मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन जब इज्तिहाद की बारी आएगी तो सारे मसले आपके नहीं मानूंगा। सिद्दीक अकबर भी मुजतहिद बैठे हैं, कोई मसला उनसे पूछ लूंगा, फारूक आजम भी मुजतहिद है, कुछ उनसे मसाइल पूछ लूंगा। लेकिन ये बात वहां नहीं हुई, क्योंकि तकलीद का दारोमदार असल में हमारी सहूलत के लिए रखा गया है। जिस मुल्क में जिस मुजतहिद का मजहब आसानी से मिल सकता हो उसमें उसी की तकलीद वाजिब हो जाती है। जिस तरह यमन में सिर्फ और सिर्फ हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक मिलता था, सिद्दीक अकबर के मसाइल वहां दस्तयाब नहीं थे, तो वो सारे के सारे हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद ही करते रहे। इसी तरह पाको हिंद में सिर्फ और सिर्फ सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक मिलता है, किसी और का मसलक नहीं मिलता। इसलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस इलाका में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद वाजिब है, उससे बाहर निकलना हराम है, और जो इस तकलीद से खारिज हुआ उसने इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार दी। और शाह साहब का ये फरमान बिल्कुल सही निकला कि जो भी गैर मुकल्लिद बना वो बाद में या मिर्जाई बनता चला गया। 1200 साल यहां तकलीद का दौर है इस मुल्क में। तारीख गवाह है कि 1200 साल में हजारों नहीं लाखों की तादाद में काफिर इस्लाम में आते रहे, और जब ये तर्क तकलीद का फितना यहां शुरू हुआ तो 1200 साल तो गुजा 100 साल बल्कि 50 साल भी नहीं गुजरे। बकौल मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी सिर्फ 25 साल अभी गुजरे हैं। 25 साल का कहता हमारा तजर्बा ये है कि बहुत से लोग जो मुसलमान थे वो मुर्तद हो चुके हैं,
اور ان کے مرتد ہونے کا سب سے بڑا سبب ترک تقلید ہے۔ یہ خود مولوی محمد حسن بٹالوی جی ہاں ترک تقلید کا سبب اس نے خود لکھا ہے۔ بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں یہ لکھا ہے کہ 25 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہے، اگرچہ اس ملک میں بے دینی کی اور بھی اسباب ہوں لیکن سب سے بڑا سبب ترک تقلید ہے۔ اس لیے میں اپنی جماعت والوں کو کہتا ہوں کہ وہ بے علم ہو کر تقلید مطلق کا انکار نہ کیا کرے۔ اب دیکھیے بالکل ظاہر بات ہے کہ 1200 سال تک لوگ کفر سے اسلام کی طرف آتے رہے اور ترک تقلید پر 25 سال نہیں گزرے تھے۔ جن لوگوں کو ان لوگوں نے امام صاحب سے آزاد کیا وہ ان کے بھی نہ رہے، وہ پھر آگے کی طرف چلتے چلے گئے۔ اس لیے یہ بیچارے خود چیخ اٹھے کہ جو امام صاحب کو چھوڑ کر آئے ہیں، بالکل غیر مقلد کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی لڑکی کو اغوا کر کے جنگل میں کھڑا کر دیا ہے۔ جب تک وہ اپنے گھر میں تھی اس کے سارے رشتے تھے، سارے تعلقات تھے اور اس کی ساری ضروریات اسے مہیا تھی، لیکن جب اسے جنگل میں کھڑا کر دیا گیا اب وہ بیچاری دیکھتی ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ مسلک حنفی اتنا کامل ہے کہ اس میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن جب اسے غیر مقلد کر لیا گیا تو اسے جا کر آپ کوئی مسئلہ پوچھیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تقلید ضروری ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ نے کہا کہ امین کہتا تھا، کہتا ہے وہ تو بیوقوف ہو گیا ہے، دماغ صحیح نہیں اس کا۔ نے کہا اچھا یہ فرمائیں کہ میں نے کل ظہر کا وضو کیا تھا اور کانوں کا مسا مجھے یاد نہیں رہا، تو اب کیا کروں، نماز دوبارہ پڑھوں وضو کر کے یا وہ ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ کانوں کا مسا سنت ہے اور سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ نے فرمایا کہ حضرت ذرا یہ دکھا دے کس حدیث میں لکھا ہے کہ کانوں کا مسا سنت ہے، اور یہ کس حدیث میں ہے کہ سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں تو نہیں آتا، فقہ میں آتا ہے۔ اس میں مجھے روکتے تھے کہ فقہ کی طرف نہ جانا، آپ پہلے فقہ کے اسٹیشن سے بولنے لگے۔ اب جو نائب شیخ الحدیث صاحب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، حضرت کو غلطی لگی، ہم خدا اور رسول کے سوا کسی کی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیں۔ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ کانوں کا مسا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا؟ نے کہا نہیں۔ نے کہا یہ کسی حدیث میں صراحتاً آیا ہے کہ کانوں کا مسا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آپ فرماتے تھے کہ خدا اور رسول کے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے، اب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ کر یہ فتویٰ دیا ہے یا رسول سمجھ کر فتویٰ دیا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں ان بیچاروں کا حال تو یہ ہے۔ تو تقلید شخصی جو ہے یہ سیدنا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ سے یمن میں خود ان کی اجازت سے شروع ہوئی۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں رات دن سٹیجوں پر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی کی بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شاہ صاحب کا وہ حوالہ دکھا کر آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حجت اللہ البالغہ موجود ہے یہاں ہمارے پاس۔ شاہ صاحب نے جو بات لکھی ہے اس کا یہ مطلب بالکل غلط بیان کرتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اس کو بدعت ثابت کرنے کے لیے اور کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ حجت اللہ البالغہ سے پیش کیا کرتے ہیں اور کبھی اس کا ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، بس پڑھ کر کہہ دیتے ہیں جی 4 صدی میں شروع ہوئی تھی، 4 صدی میں۔ حالانکہ شاہ صاحب نے جو بات لکھی اس کو سمجھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دین کا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے 3 طریقے تھے۔ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگ حضرت کے پاس ہوتے تھے براہ راست جو مسئلہ پیش آتا حضرت سے پوچھ لیتے، جو حضرت سے دور ہوتے تھے صحابہ جیسے حضرت معاذ یمن میں تشریف لے گئے تو وہ اگر مجتہد ہوتے تو اجتہاد کر لیتے، اگر اجتہاد نہ کر سکتے تو تقلید کر لیتے۔ یہ 3 طریقے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کا مسئلہ دریافت کرنے کے۔ 10 ہجری میں حضرت کا وصال ہو گیا، اب طریقے کتنے رہ گئے؟ 2، اجتہاد اور تقلید۔
تو इज्तिहाद 10 हिजरी में शुरू हुआ या पहले भी आ रहा था साथ? तकलीद 10 हिजरी में शुरू हुई या पहले भी आ रही थी? उसके बाद 4वीं सदी में जो फैसला हुआ है, इजमा हुआ है, वो इस बात पर हुआ है कि अब कोई नया इज्तिहाद नहीं होगा। ये फैसला किया गया कि अब नया इज्तिहाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आइमा मुजतहिदीन ने दीन को कामिल मुरत्तब फरमा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये फैसला कर लिया जाए कि अब हम किसी शख्स को ये हक नहीं देंगे कि वो सही बुखारी को गलत करार दे सारी को, वरना अकली तौर पर तो ऐसा मुहद्दिस आ सकता है ना, अभी अकली कोई ममानियत नहीं है। या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कानून ये है कि जिस चीज की जिस वक्त जरूरत हो वो फरामा अता फरमाते हैं, और जरूरत खत्म हो जाए तो वो चीज खत्म हो जाती है। अब जो हाफजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या दीगर मुहद्दिसीन का है, आज मुनकरीन हदीस उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? इस वक्त ऐसे हाफजे का आदमी मौजूद नहीं। उस जमाने में जरूरत थी, अल्लाह ताला ने ऐसे उफाज पैदा फरमा दिए, और जब जरूरत खत्म हो गई, अहादीस मुदव्वन हो गई, तो अब ऐसा हाफजा देने का सवाए इसके कोई फायदा नहीं हो सकता था कि ये पहले सारों को गलत कहता रहे और आगे फिर नया इख्तिलाफ शुरू कर दे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हाफजा वैसे ही उठा लिया। अब आज किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपने हाफजे के बारे में ये दावा करे कि इमाम बुखारी का हाफजा कमजोर था, उन्होंने गलत लिखा है, सही ये है, सही ये है, सही ये है। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि पूरा इल्मी सरमाया हदीस का जो है वो बेकार करार दे दिया जाएगा। इसी तरह जब तक फिका मुदव्वन नहीं हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत इज्तिहादिया से इस उम्मत के बहुत से अफराद को नवाजा। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। तो इसको हम मुहाल अकली या मुहाल शरई नहीं कहते, मुहाल आदि कहा करते हैं कि अल्लाह की आदत ये है। तो 4वीं सदी में फैसला ये हुआ कि अब कोई मुजतहिद नहीं होगा और किसी मुजतहिद की बात लेकर इनको गलत करार नहीं दिया जाएगा। तो 4वीं सदी में इज्तिहाद का इनकार किया गया, तो बाकी सिर्फ एक रह गई तकलीद। इसको एक मिसाल से समझें। बुखारी शरीफ में हदीस है, मिशकात शरीफ में भी आपने पढ़ी होगी कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो लुगते कुरैश पर नाजिल हुआ, लेकिन अहले अरब में और भी 6 लुगात मौजूद थी, और उन लोगों को इस लुगत पर पढ़ना जरा दुश्वार और मुश्किल था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उन कबीलों के बूढ़े आदमी जो हैं उनकी जबान पर यह लुगत नहीं आती, तो आपने खुदा से दुआएं मांग मांग कर इजाजत ली कि 7 लुगतों पर कुरान पढ़ने की इजाजत दी जाए। चुनाचे हजरत के जमाने में 7 लुगतों में पढ़ा जाता रहा, हजरत अबू बकर के जमाना में भी, हजरत उमर के जमाना में भी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के जमाना में, जब दूर दूर तक इस्लाम फैल गया अरब से बाहर। अब जिस तरह हमारी पंजाबी में इख्तिलाफ है, ये मुल्तान की पंजाबी और है, लाहौर की और है, लेकिन पंजाबी लोग समझ लेते हैं कि बात क्या है। बाहर के लोग समझेंगे कि ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। तो अहले अरब तो समझते थे कि ये फलां लुगत है अरब की, ये फलां है, लेकिन बाहर जब ये चीजें पहुंची तो उनमें इख्तिलाफ हुआ कि भाई ईसाइयों की इंजीलें तो 4 है, मुसलमानों के कुरान तो 7 हैं। उस खैमे वाला और पढ़ रहा है, इस खैमे वाला और पढ़ रहा है। तो अब ये इजाजत जो ली गई थी बायसे फितना बनने लगी। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिर अंसार को इकट्ठा फरमाया और ये मसला रखा। सब ने मुतफिका तौर पर यह किया कि चूंकि ये एक खास मकसद के लिए इजाजत ली गई थी, अब वो जरूरी बात नहीं रही, क्योंकि बच्चे तो उस कबीले के भी ये जबान सीख सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ लुगते कुरैश पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब इस हदीस का कोई मतलब आपके सामने ये बयान करे कि लुगते कुरैश पर कुरान पढ़ना हजरत उस्मान के जमाना में शुरू हुआ है, नबी पाक के जमाना में नहीं था, अबू बकर के जमाना में नहीं था, हजरत उमर के जमाना में नहीं था। तो इससे कोई बड़ा झूठ दुनिया में हो सकता है? उस जमाने में भी लुगते कुरैश पर पढ़ा जा रहा था, अब सिर्फ बाकी लुगात पर पढ़ने से मना किया गया है। ये नहीं कि लुगते कुरैश पर पढ़ना आज शुरू हुआ है। तो इसी तरह का ये झूठ हर गैर मुकल्लद मौलवी अपनी तकरीर में, अपनी तहरीर में बोलता लिखता है
کہ جی تقلید تو 4 صدی میں شروع ہوئی ہے، حالانکہ حدیث معاذ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. یہ بات ان کی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العینین میں فرماتے ہیں صحابہ 2 گروہ بودند، صحابہ میں 2 جماعتیں تھیں، مجتہد و مقلد. اور آیت پیش کرتے ہیں لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان میں بہت کم تھے جو استنباط کر سکتے تھے، اور باقی سارے ان کے استنباط پر کی طرف رجوع کر کے ان کی تقلید کر لیا کرتے تھے. اسی طرح قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، سورہ توبہ کے آخری رکوع میں تقریباً آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو فقہاء صحابہ کی تھی، طائفت، اور باقی سارے صحابہ ان کے فقہی فتاوی پر عمل کیا کرتے تھے. اور فقہ کا معنی آپ جانتے ہیں الشک والفتح، یعنی وہ مسئلہ الفاظ میں نہ ہو، اس سے سمجھ لیا جائے، اس کو فقہ کہتے ہیں. اس کی ایک عام فہم سی مثال میں عرض کرتا ہوں. رمضان شریف پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یاد آئی. رمضان کا مہینہ ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ہاتھ میں ایک سیب پکڑا ہوا ہے. حضرت سے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب تو صرف اتنا کافی تھا، یا حضرت فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں ٹوٹتا. لیکن حضرت اپنے مجتہد صحابہ کو اجتہاد کرنے کی تربیت دیا کرتے تھے. تو میں عمر ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا حضرت سیب ہے. فرمایا مجھے دو ذرا. حضرت نے سیب لیا اور یوں اپنے مبارک لبوں پر رکھا. پوچھا عمر بتاؤ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے؟ عرض کیا کہ حضرت ہونٹ لگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا گا، کھانے سے روزہ ٹوٹے گا. فرمایا پھر جو مسئلہ تم پوچھتے تھے وہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت بالکل سمجھ میں آ گیا ہے. تو دیکھیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مجتہد صحابی کو باقاعدہ تربیت دی ہے کہ اس طرح اجتہاد کر کے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں. ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت رمضان کا مہینہ ہے، گرمی سخت ہے، میری بیوی روزہ رکھتی ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، بچہ روتا رہتا ہے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے تو روزے قضا کر کے رکھ لینا. وہ کہتی ہے کہ جتنا ثواب رمضان میں ملتا ہے بعد میں اتنا نہیں ملتا. تو اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے میں منہ میں کوئی نوالا نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دوں تاکہ اس کی خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے اور باقی تھوک دوں، کلی کر لوں، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا. اسی وقت ایک دوسرے نے پوچھا کہ حضرت ایک عورت ہے، بیچاری ہنڈیا پکاتی ہے، روزے میں نمک مرچ نہیں چکھتی، اگر زیادتی ہو نمک مرچ کی تو اس کا خاوند اس کی پٹائی کرتا ہے. تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اگر میں روزے کی ہاتھ میں نمک مرچ چکھ کر تھوک دوں تو کیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا. شاگرد کہنے لگے کہ حضرت یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے دونوں مسئلے لیے ہیں؟ کیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے یہ دونوں مسئلے پوچھے اور حضرت نے ان کا یہی جواب دیا تھا؟ کوئی حدیث ایسی ہے؟ فرمایا نہیں. پھر آپ نے کہاں سے لیے؟ فرمایا قرآن پاک سے. کہ حضرت ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ مسئلے کہاں ہیں؟ فرمایا وہی دوسرے پارے میں جہاں رمضان شریف کا ذکر ہے وہاں تو یہ مسائل ہیں. انہوں نے کہا پڑھو، کھاؤ پیو جنسی تعلقات قائم رکھو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. فرمایا اسی آیت میں یہ دونوں مسئلے ہیں. حضرت وہ کہتے ہیں، فرمایا جو آخری وقت جنسی تعلقات سے فارغ ہوگا، اب فجر طلوع ہو گئی ہے، اس پر غسل فرض ہے یا نہیں؟ یہ فرض ہے. فجر طلوع ہوگی، نماز بھی فرض اس پر ہے. اب وہ نماز غسل کر کے پڑھے گا یا بغیر غسل کے؟ غسل میں کلی فرض ہے. فرض ہے نا؟ کہنے لگے جی بالکل فرض ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے پانی ایک طرح کے پیدا نہیں کیے. کسی علاقے کا پانی نمکین ہے، کسی علاقے کا پانی کڑوا ہے، کسی علاقے کا پانی میٹھا ہے. اب جس علاقے کا پانی نمکین ہے
उसे उसी पानी से कुल्ली करने की इजाजत दे दोगे या कहोगे कि जाओ मीठे इलाके में गुजर करके आओ? जिसका पानी जिस इलाके का कड़वा है उसे उसी पानी से कुल्ली करने की इजाजत दे दोगे? कहेंगे जरूर देंगे। फरमाया नमकीन पानी मुंह भरकर उसने कुल्ली कर ली तो तुम भी कहते हो रोजा। तो अगर जबान से थोड़ी सी हंडिया चाक के थूक दी तो फिर कैसे टूट जाएगा? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको कहते हैं तफक्को, यानी मसाइल तलाश कर लेने। अब देखिए हदीस में ये तो आता है कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो वो उसको धो लो। अब कुत्ते के अलावा शेर भी दुनिया में फिरता है कहीं या नहीं? गीदड़, लोमड़ी, चीता, भेड़िया, इनका नाम कहीं हदीस में नहीं आता। अब बाहर बर्तन रख आते हैं रात को जिम्मेदार, वहां कोई गिदड़ चाट रहा देख लिया, कुछ शेर चाट गया था, तो अब क्या किया जाए? अब या तो ये कहें कि दीन इस्लाम कामिल नहीं है, उसमें इतने दरिंदों में से सिर्फ एक दरिंदे का मसला है, बाकी दरिंदों का कोई मसला नहीं है। और या फिर मुझसे से पूछ ले, वो कहते हैं कि इसी कुत्ते की हदीस में हमें एक कुलिया नजर आ गया। हजरत ने कुत्ते का लफ्ज इसलिए बयान फरमाया कि ये दरिंदा था। अब जितने भी दरिंदे होंगे उन सब को कुत्ते पर कियास कर लिया जाएगा और सबका हुक्म इसी हदीस से निकल आएगा। इसी को तफक्को और इज्तिहाद कहते हैं। एक लतीफा याद आया, काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, याकूब थे अबू यूसुफ तो बाद में बने, ये बीमार हो गए अपनी पढ़ाई के दौरान में। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बातों में फरमाया, अमरे तकवीनी खुदावंद ताला की तरफ से ये हुआ कि सवाए चार के और किसी का मसलक बाकी नहीं रहा, इसलिए अब इन चार का ही की तकलीद की जाएगी। तो ये चार जो हैं ये तशरीअन नहीं तकवीनन अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन हो गए। अब लड़ाई खुदा से करनी चाहिए कि उसने इन चार को जिंदा क्यों रखा, ना इब्ने मसलक हाजम का जिंदा रहने दिया ना किसी और का। फिर इन चार में से हमारे मुल्क में सिर्फ इमाम साहब का मसलक पहुंचा है, ना यहाँ कोई शाफी मुफ्ती बैठा है, ना मालकी ना हम्बली जिससे हम बर वक्त मसला पूछ सके। इसलिए तकलीद शख्सी गैर शख्सी की बहस तो यहाँ वैसे ही फजूल है। वोटिंग वहां होती है कि सीट एक और कैंडिडेट तीन हो या दो हो। जहां सीट भी एक हो और उम्मीदवार भी, तो वहां वोटिंग। यहां खिताब हमें यह है कि मुजतहिद की तकलीद करो और मुजतहिद है ही एक। इसलिए यहां तकलीद शख्सी गैर शख्सी की बहस है ना, ये बिल्कुल फजूल और गलत है। खुदा की तकवीन की मुखालफत करना है। जिन मज़हब को खुदा ने यहां नहीं आने दिया अब ये नहीं ला सकते। जिस तरह हम ईसाइयों से कहते हैं, यहूदियों से कहते हैं कि जिन जबानों में खुदा ने तौरात, जबूर, इंजील को नाजिल किया था, खुदा ने उन जबानों को ही मार दिया है। वो दुनिया के किसी एक जिले में भी बतौर जिंदा जबान बोली नहीं जाती। तो इसलिए जो खुदा के मारे हुओं को अब तुम जिंदा नहीं कर सकते, तो जिनके मसलक खत्म हो गए हैं उनका नाम लेना और जो सामने है उनको छोड़ना, ये उनका एक फरेब और धोखा है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये लिखा है कि असल फरन वो मुदव्वन हो और मुकल्लिद तक मुतवातिरन पहुंचा हो। ये मुतवातिर का लफ्ज मैंने क्यों लिखा, एक और मुगालता देते हैं। कोई रिवायत निकाल ली किसी सही ज़ईफ सनद से कि ये अबू बकर सिद्दीक का ये कौल और फिका हनफी का ये है। अच्छा भी तुम सच्चे हो तो ये अबू बकर का मानो ना, यहां क्यों फिका हनफी को मान रहे हो? तो देखिए जो मसाइल फिका में आ गए हैं वो मुतवातिर हैं। यहां खुलाफाए राशिदीन का ये भी कौल खुलाफाए राशिदीन का ही है जो फिका में है, ये मुतवातिर है। वो जो सनद एक है वो शाज किरात की मिसाल है। इसलिए मुतवातिर कुरान को हम किसी शाज किरात के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब तकलीद की बुनियाद तो हमारी सहूलत पर रखी गई थी ताकि संदों की बहस की जरूरत ना पड़े। अब एक आम आदमी कैसे 50,000 रावियों के हालात याद करेगा?
और कैसे उनके बारे में फैसला करेगा इनमें कौन सिका और कौन ज़ईफ है। इसलिए उस पर मदार रखा गया कि जो मसलक मुतवातिर आ गया उसकी ना सनद की जरूरत। अब अवाम को गुमराह कहते हैं कि फिका की सनद नहीं है, अवाम को ये कहा करते हैं। अच्छा भी किस किस चीज की सनद तुम्हारे पास है? सनद तो होती है सिर्फ अखबार अहाद। ये आप जो सरफनाब पढ़ते हैं इसकी सनद है आपके पास जी? लुगत की सनद है, असूल हदीस की सनद है आपके पास, असूल फिका की, मंतिक की। बात यह है कि ये अपने आइमा से मुतवातिर चली आ रही है, इसलिए मुतवातिरात की सनद का मुतालबा करना गलत होता है। अब सर्फ तुम मान रहे हो, नहव मानते हो, मंतिक मानते हो, असूल हदीस मानते हो, असूल फिका मानते हो, हालांकि वहां सनद तुम पेश नहीं कर सकते, सिर्फ फिका का इनकार करते हो कि जी इसकी सनद लाओ जब मानूंगा। इसलिए मैंने ये शरायत जो लिखी उसमें ये लिखा हुआ है कि गैर मुकल्लिद ये अपना इम्तियाज बयान किया करता है कि हमारी हर बात सनद से साबित होती है, इसलिए अस्मा और रिजाल की जो बात पेश करेगा सनद से पेश करेगा। अब ना तकरीम में सनद है, ना तहजीब में, ना मीज़ान में, ना तज़किरा में, तो ये सारी किताबें तो गई ना उससे। असूल हदीस बयान करेगा सनद से करेगा, आप सीखते हैं देखो जी हमसे ये कैसा मुतालबा किया हुआ है। हालांकि उनके उस गलत मुतालबे के जवाब में मैंने उनसे मुतालबा किया ताकि उनको होश आ जाए कि इस किस्म के मुतालबे करने गलत है। और ये बात सबसे पहले मोहम्मद मईन शिया ने कही है, वरना ये बात इमाम बुखारी को कहनी चाहिए थी, ये फिका हनफी इमाम अबू हनीफा के नहीं। इमाम मुस्लिम को कहनी चाहिए थी, इब्ने हजर को कहनी चाहिए थी। इन्होंने इस मसले में मोहम्मद मईन शिया की तकलीफ की है, उस सिंधी की। उसने 12वीं सदी में ये कहा है कि ये फिका अबू हनीफा से साबित नहीं। तो मुतवातिर का लफ्ज जो मैंने लिखा है उसका मकसद आप समझ गए ना, कि अगर किसी और मुजतहिद का कौल खबर वाहिद से मिल जाए तो वो अखबार अहाद अगर सनद सही हो तो शुजूज का हुक्म रखती हैं, अगर सनद ज़ईफ हो तो मुनकर होने का हुक्म रखती हैं। मुतवातिरात के मुकाबले में शाज या मनाकीर जो हैं ये काबिल एतबार नहीं होती। ये मैंने सारा इसीलिए वाज़ेह कर दिया है। अगर ये इतनी 2 सतरें आपके जहन में रहें ना, या मुनाजरा तकलीद में सामने रहें, तो उन जिधर भी वो बेचारे भागते दौड़ते हैं ना, उन सब का सवाल जवाब इन बातों में मैंने अर्ज कर दिया है। तो उसके बाद मैंने आगे और भी इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। सबसे बड़ा मसला, कितना वक्त रहता है? ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, तकलीद के मसले पर गैर मुकल्लिद कभी मुनाजरा नहीं कर सकते। क्यों? उससे हमारा पहला मुतालबा ये होता है कि दलील का मुतालबा फर्ज है या वाजिब है, ये बता दो हमें। और कोई आयत या हदीस एक पेश कर दो कि हर जाहिल के लिए मसले जानने की तरह दलील का जानना भी जरूरी है, लेकिन ऐसी कोई आयत और हदीस मौजूद नहीं। इसको आप एक मिसाल से समझें। हम यहां बैठे हैं, एक ईसाई आया, उसने कहा कि जी मुझे मुसलमान कर लो, हमने उसे मुसलमान कर लिया। उसका नाम रहमत मसीह था, हमने रहमतुल्लाह कर लिया, कलमा पढ़ाया और उसे नमाज वगैरह की तलकीन की कि नमाज याद करो। अब वो चला गया। जब आया था वो मुसलमान था या काफिर? जब गया है वो मुसलमान है या काफिर है? सोच कर बताएं जरा। गैर मुकल्लिदों के उसूल पर आया वो इकारा काफिर था और गया दोहरा काफिर होकर है, डबल काफिर। क्यों? उसने जो ईसाइयत छोड़ी वो भी बिला दलील छोड़ी। ईसाइयत को झूठा होने की उसने कोई दलील बयान नहीं की। इस्लाम को कबूल किया तो हमसे कोई इस्लाम के सच्चे होने की दलील भी उसने नहीं मांगी। तो ये डबल तकलीदी कुफ्र उस पर सवार हो गया। इसी तरह आप गैर मुकल्लिदों से पूछें कि जो गैर मुकल्लिद मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है वो इसलिए मुसलमान है कि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, वो किसी हिंदू के सामने अपने इस्लाम की सदाकत की दलील बयान नहीं कर सकता, तो क्या ये मुसलमान है या नहीं? बगैर दलील के जाने हुए ईमान कबूल है या नहीं? अगर ईमान जो बुनियाद है ये बिला दलील जाने हुए कबूल है और ये मोमिन है, तो फिर फरूई मसाइल जो हैं उनमें आकर दलील के ना जानने से क्यों कुफ्र लाज़िम है?
फिर इस पर बहस करना नहायत आसान है। उसे आप बैठा लें, उसे पूछते जाएं जी नमाज जरा सिखा दें। अब नमाज के हर मसले की हदीस पूछते जाए सनद से उसे, अगर वो हर मसले की दलील बयान कर दे तो भाई ठीक है, और ना बयान करे तो तू तो खुद बेईमान है। बगैर दलील जाने हुए नमाज पढ़ता है मसाइल की, इसलिए तू अपने फतवे के मुताबिक वाकई काफिर और मुशरिक है। ये किसी साहब ने लिखा है कि हम क्यों इमाम बुखारी की तकरीर नहीं कर सकते जबकि सारे आलिम इमाम बुखारी के मुजतहिद होने के कायल हैं। पहली बात यह है कि उनकी तकरीर करें कैसे, उनका मसलक मुदव्वन हो। सिर्फ एक रकत नमाज पढ़ने का तरीका बुखारी से दिखा दें, फिर हम सोचेंगे तकरीर करनी है या नहीं करनी। वहां तो एक रकत के मसले भी नहीं मिलते, नमाज की शरायत भी सही बुखारी में नहीं मिलती। आपके यहाँ शर्त है कि कपड़े पाक हों, वहां हदीस है कि हजरत नमाज पढ़ रहे हैं और वो ओझड़ी लाकर डाल दी गई है और नमाज जारी रही। आपके नजदीक मर्द के लिए सतर कितना है, नाव से लेकर घुटनों तक, और वहां बाबू सलात फिर तुबान यहां तक चड्डी पान डाली हुई हो तो इमाम बुखारी के नजदीक नमाज हो जाती है। आपके मजहब में कुत्ते का झूठा पानी पाक है ना पाक? बुखारी में लिखा है कि पाक है। आपके यहाँ जगह का पाक होना शर्त है या नहीं? वहां लिखा है कि हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला ने गोबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, हालांकि साफ जगह थी, फरमाया कि ये जगह और वो जगह बराबर है। बुखारी में बकायदा बाब बंद है कि अगर किसी नमाजी की पुष्ट पर पखाना डाल दिया जाए तो उसकी नमाज जारी रहेगी, टूटेगी नहीं। तो भाई अगर आपको शौक है तो आज एक रगत पढ़ के दिखाएं, यहां तक चड्डी पहन लें और कपड़ों पर गंदगी मार लें, नीचे गोबर बिछा लें, और फिर हम आपको देखें कि भाई बुखारी की तकरीर में आप कैसे नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए उनकी तकलीद हम कैसे करें जब उन्होंने एक रकत नमाज के मुकम्मल मसाइल भी हमें नहीं दिए। दूसरी बात यह कि जी सब आलिम उसे मुजतहिद मानते हैं, कि सब आलिमों का किस्सा तो एक तरफ रहा, उनके शागिर्दे खास इमाम तिरमिज़ी उनको फकीह नहीं मानते। तो फिर सारा आलम चाहिए ना, सारे आलम यानी फरिश्ते भी मानते हैं हमको, ये मछलियां वगैरह भी सारे जानने फकीह है। तो बहरहाल इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामिया तिरमिज़ी में ये इल्जाम फरमाया है कि वो फुक़हा के मज़ाहब नकल करते हैं। जहां कहीं कोई रावी की बात आती है या हदीस की असूल का मसला आता है, वहां तो कहते काला मोहम्मद, इमाम बुखारी ने ये कहा। लेकिन फुक़हा का मज़हब बयान करते हुए इब्न अबी लैला जैसों का मसलक बयान कर जाते हैं। इमाम बुखारी का किसी एक जगह भी मसलक बयान नहीं किया, तो बावजूद शागिर्द होने के वो उनको फुक़हा में शुमार नहीं करते। ये पता नहीं कौन शुमार करने लगे उनको मुजतहिदीन में। और फिर जितनी किताबें तबकाते फुक़हा में मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, किसी एक किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फुक़हा में नहीं है। तो इसलिए ये दोनों बातें आपकी गलत हैं। जी हाँ जी, ये कौन से पारे की आयत है जी? कौन से पारे की आयत आप पढ़ रहे हैं जी? या कौन सी अल्लाह के नबी की हदीस है? देखिए, एक तरफ दावा ये है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस, कुरान हदीस ये मानते हैं। अब ये बुखारी का असहल कुतुब होना ना कुरान में है ना हदीस में है, क्या इसका इनकार करने वाले को आप कुरान का मुनकिर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना? जी जी, क्या है? ये होने में इत्तेफाक किसका इत्तेफाक है? सबसे पहले ये फिक्रा किसने कहा है, किस सदी में कहा गया है? ये तो किसी मुजतहिद का कौल भी नहीं। खुद इमाम बुखारी ने कभी नहीं कहा कि मेरी किताब असौल कुतुब वाला किताब इल्ला है। सिहाह सित्ता वालों में से किसी ने नहीं कहा। और आप हैरान होंगे कि आप तो फुक़हा की बात पूछ रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने पूरी सही मुस्लिम में बुखारी की संद से हदीस नहीं ली।
इब्ने माजा ने पूरी अपनी सुनन में इमाम बुखारी की सनद से हदीस नहीं ली। इमाम अबू दाऊद ने पूरी सुनन में इमाम बुखारी की सनद से हदीस नहीं ली। नसाई ने सिर्फ एक हदीस ली है सारी सुनन में। तिरमिज़ी ने 5-7 रवायतें ली है इमाम बुखारी की सनद से ना। आप समझाए ना मुझे, यो सारा लाने से तो अब हम नहीं मानते। रही ये बात, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये बात इब्ने सलाह ने कही है। इब्ने सलाह मुकल्लिद है, मुजतहिद। तुम तो मुजतहिद की मानने को शिरक कहते हो, मुकल्लिद के पीछे क्यों लगे हुए? एक बात। दूसरे, अगर उसने कहा है कि इस पर इत्तेफाक है, तो इब्ने सलाह ने एक और इजमा भी नकल किया है कि तकलीद शख्सी पर इजमा है। ये भी इब्ने सलाह ने ही नकल किया। इब्ने सलाह का उस इजमा को कुफर कहना और इस इजमा को ईमान कहना, ये कहां की दयानतदारी है? फिर असहल कुतुब होने का मतलब आप क्या कहते लेते हैं? सहाबा में सबसे पहला मुकाम किसका है? ये मनसूस है, ठीक है ना बात? तो कभी आपने बहस करते हुए इसका ये मतलब बयान किया कि अबू बकर की हदीस सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे? कभी इसका ये मतलब आपने लिया? नहीं लिया ना। जिस तरह ये है, इसी तरह मुजतहिदीन का इत्तेफाक है कि आइमा अरबा में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बुलंद है। तो अगर आप बुखारी असहल कुतुब हमें मनवाते हैं तो ये तीनों बातें पूरी मानने कि जहां फिकी मसला आएगा वहां बुखारी तो कुजा इमाम शाफी को भी नहीं मानेंगे हम, वो भी लिखें कि हम इमाम अबू हनीफा को मानेंगे क्योंकि वो चारों में अफजल हैं। और जहां कोई असूल हदीस की बात आएगी, ठीक है, हम बुखारी की मानने में। ये तो इंसाफ नहीं है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अफजल होना भी इजमान साबित हो, लेकिन उनका तो इनकार कर दिया जाए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में असहल कुतुब का ये, और फिर ये भी मैं बात अर्ज कर दूं कि हमारे अक्सर हनफी इसके कायल ही नहीं है। अल्लामा इब्ने हमाम रहमतुल्लाह ने फतुल कदीर में, अल्लामा हलवी ने शरह मुनिया कबीर में इस पर मुकम्मल बहस फरमाई है कि ये महज एक नाइंसाफी है। और उन्होंने 2 दलीलें बयान की हैं, वो दलीलें आप सुन लें, उन पर गौर फरमाएं और उनका जवाब अगर किसी के पास है तो वो लाकर हमें दें। पहली दलील उनकी ये है कि रावी में असल शर्त अदालत है। जब 2 रावियों में अदालत साबित हो गई, अब उनमें से बिलफर्ज एक वली अल्लाह भी हो, तो इसकी विलायत का रवायत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भी आदिल है, ये भी। मसलन अदालत में गवाह पेश होते हैं, गवाह में अदालत शर्त है, जरूरी है, आप यूं चला रहे हैं, यूं है कि शर्त है। अब एक का आदिल होना साबित हो गया, दूसरा आदिल भी है और वली भी है, तो क्या अदालत ये कहेगी कि भाई चूंकि इसके साथ विलायत भी है इसलिए इसकी गवाही को मैं तरजीह देता हूं? ये जज कहेगा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपना इस फन में मुकाम अलहदा है, लेकिन रवायत के बयान में मेयार अदालत है। इसलिए सही सन से हदीस किसी किताब में भी हो, वो इसके बिल्कुल बराबर समझी जाएगा। फिर जो आप इत्तेफाक का कह रहे हैं, अब यही मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इंसाफ करें आप। इमाम अबू हनीफा के मुजतहिद होने पर इत्तेफाक है या नहीं? ठीक है ना। अब एक इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा का हो जिन पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, मुजतहिद हैं, और एक इज्तिहाद रोपड़ी साहब का हो। अब कोई रोपड़ी के इज्तिहाद को माने और उसको ना माने तो गैर मुकल्लिदों के मज़हब पर उसे काफिर होना चाहिए ना। जैसे गैर मारूफ मुहद्दिस की बात को बुखारी के मुकाबले को माने, तो इंसाफ जरा रखें, इनको भी सामने रखें। ये इन लोगों ने एक गलत प्रोपेगेंडा कर रखा है महज। और दूसरा वो अहले मगरिब का जो अहले मुस्लिम के बारे में, हाँ जी, वो तो बहुत सी अखबार है ना, अहले मगरिब मुस्लिम के बारे में है। बाद ने नसाई के बारे में कहा है कि ये सबसे ज्यादा सही किताब है। बाद ने मौता के बारे में भी कहा है। और फिर दूसरी दलील उन्होंने ये दी है, पहली दलील आप समझ गए ना, अदालत। दूसरी दलील ये दी है कि जब इस बात पर इत्तेफाक है कि सही बुखारी शरीफ में बिती रावियों की रिवायतें मौजूद हैं, रावजियों की भी हैं, इसके रावी रावजी भी हैं। और मैं तो जरा मुनकिन हदीस से डरता हूं, वरना मैं आपको बताऊं,
حریث بن عثمان کی حدیث بخاری میں ہے، ابو حنیفہ کی سند سے نہیں ہے. آخر اس میں کیا خوبی تھی، ان میں کیا عیب تھا؟ یہ حریث بن عثمان وہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر 70 مرتبہ روزانہ حضرت علی پر لعنت بھیجتا تھا. اب بخاری کے معیار پر یہ روایت تو پوری آ گئی ہے. یہ راوی امام جعفر صادق کی کوئی روایت انہوں نے لی، ابو سال بصری سے لی ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو علانیہ گالیاں دیا کرتا تھا صحابی رسول کو. تو آپ خلاصہ یہ ہے، ویسے فہرست میرے پاس ہے اگر آپ لینا چاہیں ایسے راویوں کی تو، کہ جب بدعتی راوی کے رد اور قبول میں امت میں اختلاف ہے اور اس میں بدعتی راویوں کی روایتیں موجود ہیں، تو پھر خام کا یہی کہہ جانا کہ اس میں جو آ گیا ہے وہ حرف آگر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں اگر ان کی مہارت کو مانتے ہو تو وہ میں نے بات صاف کر دی کہ چلیے اصول حدیث میں ہم امام بخاری کے قول کو مقدمہ رکھیں گے، لیکن پہلے آپ یہ بھی کہیں کہ فقہ میں ابو حنیفہ کے قول کو مقدمہ رکھیں گے. انصاف تو یہی بات ہے نا. تو اس لیے ان کی اصول پر تو اصول الکتب جو ہے وہ اجماع نہ مانے تو صحابہ کا نہیں مانتے، 20 تراوی پر نہ مانے تو طلاق ثلاثہ پر صحابہ کا نہیں مانتے، اور ماننے پر آئیں تو 6 صدی کے مقلدین کی باتیں مان رہے ہیں جن کو وہ ابو جہل کی طرح مشرک سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے بیچاروں کا. وہ تو ایسی مثالیں من گھڑت سی پیش کیا کرتے ہیں. جب ہم اجماع پیش کرتے ہیں تو اجماع ہوتے نہیں، اجماع حجت نہیں. ہاں ہمیں کہتے ہیں اجماع حجت ہی نہیں. اسی لیے آپ تقلید کے بارے میں شخصی کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے ہیں، ایک نے مجھے لکھا خط ایک طرف سے، دوسری طرف سے امام ابو حنیفہ کا نام ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام ابو حنیفہ افضل ہے، اس کی تقلید کرنا. میں نے کہا حضرت آپ پہلے یہ لکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخاری اصح الکتب ہے، اس کو مان لینا. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ اقیم الصلاۃ تو ہے لیکن چراغ دین کا نام نہیں ہے یہاں. جب تک یہ نہ ہو کہ چراغ دین نماز پڑھے، میں تو نہیں پڑھوں گا، میرا نام ہونا چاہیے یہاں. تو دیکھیے دھوکہ دیا، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے موضوع کو اصل کو انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. امام کا منصوص میں اللہ ہونا یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمارا امام منصوص میں اللہ ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ اس کا مجتہد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے. ہاں اس پر ہم سے وہ مانگے، ہم اجماع کی نصوص پیش کر سکتے ہیں. اور تمہارا جاہل ہونا بھی اجماعی ہے غیر مقلدین کا. ہم زور کی رکھتے پوچھتے ہیں، آپ کو نہیں آتی بیچاروں کو. نماز کی شرائط پوچھتے ہیں، ان کو نہیں آتی، پوچھ کے دیکھ لیں بے شک کسی سے. تو یہ مسئلہ تقلید کا میں نے صرف مختصر موضوع ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں ان کے بڑے بڑے وسوسے جتنے ہیں نا ان کا حل آ گیا. اب قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھ سے تقلید شرک ہے. اب ان کا پتہ قرآن حدیث کیا ہوتا ہے کہ یہ 4 مذہب ہیں، یہ 4 مذہب بھینس کے 4 تھن ہیں، یہ ان کا قرآن حدیث ہے. حنفیوں نے ایک تھن سے دودھ نکالا، شافیوں نے دوسرے سے، مالکیوں نے، حنبلیوں نے چوتھے سے، اور ہم نے سارا دودھ لے کر اس سے مکھن خود کھا لیا اور لسی ان کے منہ پر دے ماری. بھئی 4 تھن تو چلو اس نے تقسیم کر دیے نا حنفی شافی مالکی حنبلی میں، وہ 5واں راستہ ہوتا ہے دودھ نکلنے کا کوئی؟ جی وہ بچہ رو رہا تھا نا ایک غیر مقلد کا، لا مذہب کا، جی دودھ پینا ہے. اس نے کہا کہ وہ ایک تھان کا دودھ تو حنفی لے گا، دوسرے کا شافی، تیسرے کا مالکی، چوتھے کا حنبلی. نے کہا پھر ہم کہاں جائے؟ یہ ہم تو حدیث پر عمل کریں گے. یہ پیچھے لا باس اب بولے مایو کا نظر اپنی اپنی پسند. یہ تو روپڑی صاحب کی تھی. اس کے بعد احسان علی زیر کی باری آ گئی. اس نے دیکھا کہ بہن تو دودھ نہیں ہے. اب بہانہ کیا بناتا ہے؟ دیکھا نا 4 ہے نا تھا، کہتا ہے مشرک معلوم ہوتی ہے 4 تھا. وہ آگے موحد کھڑا تھا، نہیں سمجھے نا. اس نے جلدی سے فقہ محمدیہ نکالی بغل سے. ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے اور ایک قول میں کھانا بھی جائز. اس نے وہاں پیالہ رکھ دیا. اب دیکھیے ان مثالوں کو یہ قرآن حدیث سمجھتے ہیں. حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مذہب کا معنی تھن کسی لغت میں آتا ہے یا قرآن حدیث میں آتا ہے؟ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن پاک خدا کی کتاب ہے، اس کی قرات 7 قراتوں پر اس کی تلاوت ہو رہی ہے.
अब कोई किरात का माना दीवार करे कि जी कुरान में 7 दीवारें 7 कारियों ने खड़ी कर दी हैं। कोई किरात का माना टुकड़ा कहे कि जी देखो एक खुदा की किताब थी, इन कारियों ने 7 टुकड़े कर दिए हैं। कोई किरात का माना थन बयान करना शुरू कर दे, तो अब इसका नाम कहे मैं कुरान हदीस बयान कर रहा हूं। कितनी गलत बात है। जैसे कुरान 7 किरातों पर पढ़ा जा रहा है, आप सारी उम्र सिर्फ एक किरात पर पढ़ें तो आपको 7वां हिस्सा कुरान का सवाब मिलता है या पूरे सवाब कुरान का? ना 6 किरात तो आपने नहीं पढ़ी। अब ये जो कहते हैं जी रुपए की 4 चवनियां हैं, एक चवनी शाफियों के पास, एक मालिकियों के पास, एक हमरियों के पास, एक हनफियों के पास, और हमारे पास कहते हैं पूरा रुपया। क्या रुपया की 4 चवनियां तकसीम हो जाने के बाद रुपया बच जाता है? किसी गैर मुकल्लद को रुपया देकर उससे 4 चवनियां ले, फिर रुपया भी उठा ले। अगर तो वो खामोश रहे तो फिर वो सच्चा गैर मुकल्लद है। अगर रुपया उठाने पर चीखे तो मुनाफिक गैर मुकल्लद है। अब बताया कि उसके पास रुपया भी कहां से बचेगा? तो ये चवन्नी मज़हब का माना कहीं है? दीन हमारी मंजिल है और मज़हब उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसके रास्ते साफ सुथरे हों ताकि राहगीरों को कोई तकलीफ ना हो। रास्ते पर चलने वाला जो है उसको कोई आवारागर्द, और जो रास्ते से हटकर झाड़ियों के पीछे लेट रहा हो जी, वो तो आवारागर्द है ना। या जो रास्ता तोड़ना चाहे उसको मुल्क का बागी समझा जाएगा या नहीं? तो जो ये मज़ाहिब को तोड़ना चाहते हैं ये बागी हैं इस्लाम के, दरअसल आवारागर्द हैं, गैर मुकल्लद आवारागर्द कोई कहते हैं। अब एक दिन हजरत हाफिज साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ये मोहम्मदी गाड़ी जा रही है, ये मोहम्मदी लाइन है, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। इस पर अबू हनीफा टीटी लगा हुआ है, शाफी टीटी लगा हुआ है। टीटी समझते हैं ना आप? ऐसे जो टीटी चेक करता है। मालिक टीटी है, अहमद बिन हंबल टीटी है, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। जिस पर अबू हनीफा टीटी लगा हुआ है, शाफी टीटी लगा हुआ है। टीटी समझते हैं ना आप? ऐसे जो टीटी चेक करता है। मालिक टीटी है, अहमद बिन हंबल टीटी है, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। मैंने लिखा कि हजरत आपका चालान हो गया, मुकदमे की फिक्र करें। क्यों? एसटी आकर 2 किस्म के आदमियों को पकड़ता है। एक उनको जिनके पास टिकट ना हो, टिकट भी गाड़ी की होनी चाहिए ना। वो लतीफा शायद आपने सुना हो कि कोई कॉलेज का लड़का सफर 2 कर रहे थे, टिकट पास नहीं थी गाड़ी की। जब एसटी आया तो जेब में हाथ डाला, लिफाफा था, वो टाक के टिकट लगाकर यहां लगा ली उसने, निकाल दी। एसटी ने पूछा टिकट, उसने कहा नजर नहीं आती ये है। उसने जूता उतारा और 5-4 लगा दी। ये क्या? उसने कहा मोर लगने से डाकाने की टिकट। अब दूसरे के पास ये भी नहीं, उसने कहा तू, उसने कहा जी मैं तो बेरंग सफर कर रहा हूं। तो एक एसटी उसे पकड़ता है जिसके पास टिकट, और अगर सफर आज करना हो और टिकट पिछले साल की मेरी जेब में हो तो एसटी पकड़ेगा या नहीं? मैंने कहा जिन हदीसों पर तेरा अमल है, इमाम अबू हनीफा उनकी तहकीक में वो मनसूख हैं, और तू पिछले टिकटों से सफर कर रहा है, तेरा चालान हो चुका है, इसलिए अपने मुकदमे की तैयारी कर। तो ये हाल है। बेचारे इस तरह की मिसालें देते हैं, लेकिन वो जो गुज़े खुद सामने बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं जी बड़ा कुरान हदीस हाफिज जी ने बयान किया जी। कुरान हदीस से बात तो कोई बात ही नहीं। हालांकि तकलीद के मसले में इनके पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल ना कोई कुरान की आयत किसी मुजतहिद की तकरीर के रद में बयान कर सकते हैं, ना कोई अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर सकते हैं, ना किसी सहाबी का कौल। क्या है क्या हदीस है? वो आप कोई किताब उठा लें, तहजीब तहजीब में, वैसे ये 70 मरतबा नाम का तहजीब तहजीब में है। जब अस्मार जाल की किताब उठाएंगे ना, जहां नाम होता है उस पर किताबों का नाम भी होता है। मतलब खा लिखा हो तो ये बुखारी का रावी है, ऐन लिखा हो ये सियासता का रावी है, इस तरह लिखा हुआ हो जैसे 4 होता है तो सुन्नी अरबा का रावी है, सिर्फ मीम लिखा हो मुस्लिम का रावी है, दाल लिखा हो अबू दाऊद का रावी है, सीन लिखा हो नसाई का रावी है। तो वहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस किस किताब का रावी है, और वहीं से आपको इसके कमालात का भी इल्म हो जाएगा कि ये कैसा शख्स है।
तो अब कोई सवाल तकलीद के बारे में ज़हन में हो तो पूछ लें फिर। हाँ मेरे बात मैंने इस मतलब को मैंने इतिहास करके निकाला, इस पर तो इतिहास ना करना और कि तुम खुद इतिहास करना और हाँ बिल्कुल ठीक, बस बात तो समझ गया। ये वाकई अभी ज़हन में आई थी, आपने अच्छी बात पूछ ली। अब आखिरी हरबा गैर मुकल्लिदीन का ये होता है कि तुम्हारे तो इमामों ने तकलीद से मना किया है, तुम क्यों करते हो? तो गोया तुम तकलीद करके कुरान हदीस पहले छोड़ गए थे, ठीक है ना, उनकी बात मैं उनकी तरफ ध्यान करता हूं। कुरान हदीस पहले छोड़ गए थे, तुम तो अपने इमाम को भी छोड़ गए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये गैर मुकल्लिदों का एक बहुत बड़ा धोखा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिका के मसाइल 12,90,000 हैं। इमाम साहब ने जो मुरतब फरमाए तो उनके साथ दलाइल लिखवाए नहीं, बात समझे। अब ये 12,90,000 अकवाल जो बिला जिक्र दलील इमाम साहब ने उम्मत को दे दिए अपने मुकल्लिदीन को, तो ये पूरे 12,90,000 अकवाल हैं कि तकलीद कर लो, मान लो, इस पर अमल कर लो। फिर खास तौर पर किफाया शरह हिदाया में इमाम साहब से ये नस मौजूद है कि आमी पर मुजतहिद की तकलीद वाजिब है। वो जहां मना किया है वो मुजतहिद शागिर्दों को मना किया है। मुजतहिद पर तो हम भी तकलीद के कायल नहीं है ना। यहां से ये नकल करते हैं शाह वली की किताब से, वहां ऊपर बाब है अल मुतबहर फिल मज़हब, उनके बारे में अकवाल हैं। शरानी ने भी उनके बारे में ही ये अकवाल लिखे हैं। इसको मिसाल से समझे, एक डॉक्टर साहब उन शागिर्दों को लेक्चर दे रहे हैं जिनको उन्होंने डॉक्टर बनाना है, ठीक है ना बात। उन्हें तो वो ये खिताब करते हैं कि भाई मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, इसको गौर से देखो, मेरी बातों को समझो, जहां से समझ ना आए वहां पूछ लेना। अब एक मरीज वहां बैठा हो, वो दुकान पर जाए तो कहे जी मुझे भी ये बताओ, ये गोली आपने एक दी, ये 2 क्यों दी हैं? ये तो 3 दिन के बाद खाने को कहा, ये रोज 3 खाऊं, ये क्यों? तो उसे कहेगा कि भाई तुझे सवाल का हक नहीं है, तू डॉक्टरी पढ़ा हुआ नहीं। उसने कहा उनको क्यों कह रहा था जो शागिर्द डॉक्टर बन रहे हैं? है कि वो तो डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तू डॉक्टर बनना नहीं चाहता। तो हम उन अकवाल को मानते हैं वो आइम्मा मुजतहिदीन के बारे में है। गैर मुकल्लिदों का उन अकवाल को पेश करना और जो आमी के बारे हैं उनको छुपाना, युहर्रिफूनल कालिमा अम मवाज़िही पर अमल है कि किसी के मतलब जो बात है उसको दूसरे पर चस्पा कर दिया उन्होंने। इसलिए ये यहूदियों की तकलीद है कि आमी के बारे में जो इमाम साहब का कौल है उसको छुपाया जाए, किफाया में साफ तौर पर मौजूद है। और जो मुजतहिद को जहां खिताब किया गया है उसको अवाम पर चश्मा किया जाए। तो ये कुरान ने बताया कि यहूदियों की आदत थी, बात कहीं की कहीं लगा दिया करते थे। तो गैर मुकल्लिद भी यहूदियों का चरबा है, इसलिए बेचारे उसी पर अमल कर रहे हैं। और कोई बात पूछनी होती